you for staying with us. We are back from the break اور ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسی ٹیم ہے جس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے میکسیکو میں. اس پہ میں بعد میں آؤں گا, لیکن پہلے میں ایک بات کرتا جاؤں کہ ڈیبیٹس کے اوپر انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. لیکن کل میں تقریر سن رہا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی, جو وہ پڑھ کے بول رہے تھے اور ساری انگریزی میں تھی. ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو میں ہے, لیکن انہوں نے انگریزی میں ساری اسپیچ کی اپنی, تاکہ قوم کو سمجھ آ سکے, کیونکہ ساری قوم جو ہے وہ انگریزی بولتی. بڑی اچھی بات ہے, ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وہ صدر ہیں, لیکن وہ ساری اسپیچ انگریزی میں تھی اور پڑھ کے بول رہے تھے, کیونکہ پڑھا اس سے جاتا ہے جو یاد نہ ہو, اور یاد وہ نہیں رہتا جو دل سے نہ ہو. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ دل, دماغ اور یادداشت کا رابطہ اکٹھا رہے. اگر نہیں رہے گا تو پھر پڑھ کے بولنا پڑے گا. اور ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت تیمور بانڈے بیٹھے ہیں, پریزیڈنٹ ہیں یہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے, اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں زینب جو کراچی سے ان کا تعلق ہے, عظیم بیٹھے ہیں لاہور سے آپ کا تعلق ہے, اچھا ایجسونین ہے, تو کلب گوز آن اینڈ بیانڈ. اور اس کے ساتھ ہیں شجان ہیں, تو آپ دیو جسٹ ون ڈیبیٹنگ جو all I think what's the name that for that ideas championship. اور کارل پاپر جو ڈیبیٹنگ کمپٹیشن ہے وہ آپ سب نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. اور آپ جب واپس آئے ہیں والہانہ استقبال ہوا ہے, سارے سیاسی لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے, انہوں نے بہت سے انعامات دیے, بہت سے تمغے ملے, تمغہ حسن کارکردگی میرا کو مل چکا ہے, تو آپ کو ضرور ملا ہوگا. تو یہ پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ویسے لوگوں کو ایسی ہی خدمت ہوتی ہے. ایسا ہی ہوا آپ کے ساتھ؟ ایسے کچھ بھی نہیں ہوا جی. اچھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیل می دیٹ فیلنگ جب آپ وہاں پہ تھے اور آپ سب اکٹھے تھے, اور ماشاءاللہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو, کوریا کے ساتھ تھا آئی تھنک فائنل تھا آپ کا. تو ڈو یو تھنک کہ وہاں پہ what was the feelings, کوئی پیچھے کوئی ترانہ بج رہا تھا, کوئی دل میں جھنڈا تھا؟ ایکچولی جب ہم فائنل ختم ہوا تھا تو ابھی ریزلٹ وغیرہ اناؤنس نہیں ہوئے تھے, دا فائنل جسٹ اینڈیڈ, لیکن پورا ہال جو 600 لوگوں سے بھرا ہوا تھا, سارا ہال اٹھ کے پاکستان پاکستان کے نعرے لگا رہا تھا. ذرا میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیے کہ آپ جب وہاں پہ تھیں اور آپ نے you did your part, and how did you, کیا تھا اس وقت, فیلنگس کیا تھیں آپ کی؟ ہمیں بہت اچھا لگا, کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہم ادھر جا کر جیت سکیں, کیونکہ پاکستان نے, جیسے شجاع نے کہا کہ پاکستان نے کبھی ٹیم بھیجا نہیں ہے پہلے. تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ ہم پہلے تو ذاتی طور پر یہ سننے میں بہت کم آتا ہے ویسے, آج کل جتنے لوگ ہیں وہ سب میں کہتے ہیں. آپ جب ہم کہتی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, بیکاز یو ٹیک دس ایز ون یونٹ, ون ٹیم. تو اگر یہ سوچ رہے ہماری فیوچر کی, ہماری یوتھ کی, تو آئی تھنک پاکستان کو مستحکم کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو آئی لو دا وے یو سے ہم, بیکاز ہم از ون یونٹ. سو گریٹ, پلیز کیپ آن. اور پہلے تو کیونکہ ہم اتنی کامیابی حاصل کر سکے, اور دوسری بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کر سکے, تو بہت اچھا. What do you think is wrong with Pakistan? That's a tough question. I think the biggest issue is this, that education restricted to a small proportion of society. Do you think you will ever come in power? Politics میں آئیں گے آپ؟ نہیں. وجہ Politics, the impression that we have کہ it's a very dirty game, and if we want to help our people, we don't think politics is the right way. ڈیپینڈ کرتا ہے. To achieve what you want, جو آپ چاہ رہے ہیں پاکستان میں, یہ جو آپ کے سوالات ہیں, خیالات ہیں کہ ایجوکیشن عام ہونی چاہیے, it's possible in 1 minute if you are the Prime Minister of Pakistan. What is the key to confidence? What do you think is the key to confidence? If one believes in himself, right, confidence comes automatically, because if one believes that what he says is right. So he is confident in himself that what he's saying. So you have to believe in what you say, and then the confidence comes. That's very good. کہ ایک آپ کو اس میں بلیف ہونا چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے, حق کی بات ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو ان کی سوچ پہ کام کرنے دیں, اپنی سوچ کی جو ایک مروسی سے جو ایک سیاست ہے اس کے اوپر نہ لے کے آئیں. یہ بچے ہیں, ان کو کھلنے دیں, خدا کے لیے ان کو بڑھنے دیں آگے, بیکاز یہی پاکستان کا فیوچر ہے. آپ اور ہم جو ہیں وہ ماضی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہمارے پیرامڈز بن جائیں, ہم کو اچھا کام کر جائیں, ان بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.
हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? शुएब अहमद। शुएब अहमद। शुएब अहमद जो हैं वो स्पीड पेंटिंग करेंगे। जी जी, ये मतलब जल्दी से जल्दी आप अंडर 5 मिनट्स। अंडर 5 मिनट्स आप पेंटिंग तैयार करेंगे। और जी। किन की पेंटिंग बना रहे हैं आप? ये अब इंडिपेंडेंस डे के हवाले से अब सरप्राइज ही होगा, क्योंकि स्पीड पेंटिंग असल में सरप्राइज एलिमेंट के साथ है। सरप्राइज। तो आप पेंटर हैं बेसिकली? नहीं, एक्चुअली हम स्टूडेंट FSC है, इंशाल्लाह आगे मैं MBBS करूंगा, लेकिन ये आपने कहाँ से सीखा है? ये गॉड गिफ्टेड है मुझे। ये गॉड गिफ्टेड है आपको। जी। तो ये आपने पढ़ा भी नहीं है और माशाल्लाह ये मुल्क जो है वो भरा पड़ा है गॉड गिफ्टेड लोगों से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको देखें और उनको समझें। दिस इज समथिंग न्यू, ये आज तक कभी पहले हुआ नहीं है। ये आज तक पहले कभी नहीं हुआ, आज पहली दफ़ा हो रहा है। जी बड़ी अच्छी बात है। आप स्टार्ट करें, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ कि आपने ये क्या जल्दी में आपने ये क्या बनाना है। हमें खुद नहीं पता आपने क्या बनाना है जी। और एक सरप्राइज़ है, ये देखते हैं कि वो क्या सरप्राइज़ है। और मैं ज़रा आगे चल दूँ। आप जो मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं बताता चलूँ कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बिकॉज़ हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं और हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को हम सीने से लगा के रखें, उनको इज़्ज़त के जो एक मर्तबा है उस पर रखें हमेशा, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाज़ हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तानी हैं। सबसे खूबसूरत बात ये। और मैं सलाम पेश करना चाहूँगा गुलाम अब्बास साहब को। बहुत शुक्रिया। मैं जियो वालों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका भी और नाज़रीन और सामीन का भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज खान साहब क्या आज सुना रहे हैं आप? आज दिन के हवाले से जश्न आज़ादी के मौके पे एक नगमा मैंने गाया था, बहुत मकबूल हुआ। और मैं ये खुशनसीबी समझता हूँ अपनी कि तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि सबसे ज़्यादा मैंने अपने वतन के नगमे गाए। माशाल्लाह। अपना गाया हुआ नगमा पेश कर रहा हूं। बाकी ये शर्फ इसलिए नहीं हासिल कर सके बिकॉज वो इंडिया पाकिस्तान जाते रहते हैं। मुझे तो ऑफर भी हुई, हाँ। बड़ा ओपन बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए ठुकरा दिया कि मेरे वतन ने मुझे नाम दिया। तो मैंने अपनी इंडस्ट्री में इतना गाया, बहुत अच्छी तो बात। मैं वहां जाके क्या करूँ। वतन का नगमा। तेरी गलियों के, तेरे कूचों के, तेरी राहों के, तेरे रस्तों के, तेरी गलियों के, तेरे कूचों के, तेरी राहों के, तेरे रस्तों के, कंकड़ हीरे पत्थर सोना, कंकड़ हीरे पत्थर सोना, रेज़े नीलम ज़र्रे परवीं, ऐ पाक वतन, ऐ पाक ज़मीं, तेरा दिल मोती, तेरी रात लगी। तू रोशन आँख के दिल में है, मेरी रूह में है, मेरे दिल में है, मेरे नूरे सहर, मेरे मेहरे नजर, मेरे नूरे सहर, मेरे मेहरे नजर, मेरे नज़्मे फलक, मेरे माहजब, ऐ पाक वतन, ऐ पाक शान से। जी
जी शुएब, आपकी पेंटिंग्स तैयार हैं और आप बड़े 5 मिनट पहले ही ब्रेक पे जाने से पहले ही आपने तैयार कर दी। पहले हो गई थी। अब तो अब ये क्या, अब आपने इसको कर दिया ब्लैक, अब क्या होगा? अब इसमें मैं ग्लिटर फेंकूंगा तो इमेज एकदम से बाहर पॉप आउट तो ज़रा फेंकें, क्या है इमेज देखते हैं। हाँ, इससे पहले के बिल्कुल ऐसे ही हमने ग्लिटर की जगह अपनी सोच की जो चांदी है, अपनी जो असूलों की जो चांदी है, अपनी ज़मीर की जो चांदी है, ऐसे ही इन तस्वीरों पे फेंकनी है ताकि ये रोशन हो सके। इन्होंने जो कहा है वो हमारे लिए हमारे सामने नुमायां हो सके। हमारे अंदर जो सेल्फ इंटरेस्ट का अंधेरा है, उस अंधेरे में ये तस्वीरें छुप रही हैं। जो आजकल सियासत का हाल है, जो आजकल पाकिस्तान के साथ वो कर रहे हैं हम सब मिल के, अगर जब तक हम इनके असूलों की चांदी और ये जो इनका जो रंग है ये इन पे नहीं डालेंगे, तब तक हमें अपना रास्ता नज़र नहीं आएगा। बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझें। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह हमें एक अपने आर्ट से एक बहुत बड़ी बात समझाई है कि अंधेरे में चीज़ को किस तरह नुमायाँ किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको आगे बढ़ने की सलाहियत अता फरमाए। हमारे साथ मदिया हैं, किचन में हैं और बहुत सारा खाना लेके वो बैठी हैं। मैं देखूं कि जिस तरह ने झटपट ये पेंटिंग्स बनाई, इस तरह झटपट मन्नान ने भी आज काम दिखा दिया। मन्नान, अच्छा मन्नान, चारों रीजन्स की डिशेज है ये। आपने तो आज जैसे कि आज सब सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी, तो मेरी तरफ से भी सारे अहले वतन को जो है आज़ादी खुशियाँ मुबारक। और क्योंकि सारी कौमी जज्बे की बात हो रही है, तो हम यूनिटी की बात है, तो हमने कहा तमाम सूबों को इकट्ठा किया जाए यहाँ पे। यहाँ पे बलूची सब्जी बनाई गई है, KPK से ये डेलिकेसी है चपली कबाब की, ये सिंध की सिंधी बिरयानी है, और पंजाब के मुख छोले, और ये कश्मीर बनास्पति में बने। तो ये तो 4 सूबे और 5वां कश्मीर सूबा, 5 सूबे हमारे हो गए, कश्मीर भी हमारा सूबा इंशाल्लाह बनेगा। तो ये इन चारों में ये डला तो ये हुआ। तो ये बड़ा अच्छा आपने किया। आपका भी अपना कोई आज़ादी के हवाले से आप कोई आज मैं आज़ाद हूँ सोच के ऊपर कोई? आज़ाद तो बिल्कुल हम लोग हैं, मगर ये कि आपको जो पेट्रियाटिक और होना चाहिए, और वतन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और आपकी फीलिंग्स जो हैं ये हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए, ताकि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो तो आप जो हैं, चाहे चोरी कर रहे हो, नहीं चोरी तो नहीं करेंगे। पाकिस्तानी जज्बा होगा तो डेफिनेटली आप चोरी तो नहीं करेंगे। जज्बा तो है, चोरों में बड़ा जज्बा है, लेकिन देखें सारे जज्बे ले चोर बैठे तो हुए जहाँ पे बिठाया, बोर्ड दे के जहाँ पे बिठाया, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि व्हाट ड्राइव्स यू, आपकी जो सोच है उसको ड्राइव क्या चीज़ करती है, वेदर इट्स गुड और बैड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपका जो कोर है, जहाँ से चश्मा फूटता है वो पानी पाक भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है और जहर आलूद भी हो सकता है। तो उस कोर को हमेशा समझना है कि जहाँ से पानी आता है सोच का, वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक सोच की बात है, तो हमारे साथ इस वक्त हैं उमर सैफ। कैसे हैं उमर, आप ठीक ठाक हैं? और माशाल्लाह उमर जो हैं वो, फिर मैं कहता हूँ कि आज मुझे इतना फ़ख्र हो रहा है पाकिस्तानी होने पे, बिकॉज़ हर तरफ जो है वो कामयाबी नज़र आती है। मैं जो प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, वो मैं आज उनकी बात नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ उस सफ़र की बात करूँगा, उस कामयाबी की बात करूँगा जो पाकिस्तान के झंडे को हरा रखता है, उसके चांद और तारे को हमेशा रोशन रखता है। ये वो सोच है, ये वो लोग हैं जो इकट्ठे मिल के, और ये वो तस्वीरें हैं जिससे ये स्टार्ट हुआ हमारा सफ़र। और हमारे पहले गाइड, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो पहले प्रेसिडेंट थे या जनरल थे, वो एक नई सोच थी, एक नई सोच के ऊपर उन्होंने काम किया। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छे आप साइंसदान हैं। मैं तो आम लफ्ज़ों में इसलिए कहूँगा ताकि लोगों को समझ आ सके, क्योंकि ज़्यादातर समझ नहीं आती लोगों को। MIT ने आपको रिकमेंड किया था कि आप टॉप फर्स्ट 10 में आपने। MIT पब्लिशेस अ लिस्ट एवरी ईयर, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू, जो दुनिया के 35 यंग इनोवेटर्स जो आइडेंटिफाई करते हैं अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स, उसमें कंप्यूटर साइंस के भी 4-5 होते हैं। तो लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने पाकिस्तान में से भी दे नेम समवन, आई थिंक। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम तालियां बजाएं। तो मैं ये पूछ रहा था कि आप हाउ डू यू फील अबाउट इट? डू यू फील मोर इंटेलिजेंट देन अस? नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं। आई थिंक कि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। कम अक्रॉस पीपल एवरी डे जो कि आर वे स्मार्टर देन मी।
I teach at LAMS, as you know. अच्छा अच्छा. तो whenever I walk into a classroom, तो उसके अंदर मेरे से बहुत ज़्यादा brilliant और बहुत ज़्यादा smart और बहुत ज़्यादा hard working बहुत सारे students होते हैं. And Sir, tell us about your innovations and the hurdles that you faced. Well, the innovations have mostly been, मेरी research जो है वो ये है कि technology developing world में कैसे इस्तेमाल हो सकती है emerging markets में. So there are several things that we worked on. There's an architecture that we made which makes the internet go a little faster over a peer-to-peer network. जिसको हम बिटमेट कहते हैं. वो अब कोई तकरीबन 35-40 हज़ार लोग इस्तेमाल करते हैं तकरीबन सारी दुनिया से. इसी तरह से we have developed an SMS technology which lets people make communities जैसे Facebook पे communities बनाते हैं इस तरह. अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बहुत इंटरेक्शन रहती है आपकी यंग स्टूडेंट से. पाकिस्तान के जो यूथ है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? I think पाकिस्तान की यूथ के लिए पैगाम ये, and also in my current government position, to not lose hope. Not lose hope. Because I think Pakistan has just tremendous potential. अगर आप देखें कि हमारी डेमोग्राफिक किस तरह से है, तो तकरीबन 60% population is young population in Pakistan. And this is a population that is fighting for their identity, Pakistan ki. They are now fighting for a change to bring about a Pakistan which they can own and they can transform into a progressive Pakistan. Are you in the government also? जी, I am in the तो government. आप that means you support a political ideology? Well, नहीं, I support the country. और ये बड़ा ज़रूरी है, I think कि इस वक्त मतलब सियासत से कतई नज़र ये काम किया जाए कि ये मुल्क तरक्की करे. मुल्क तरक्की करे और सियासी हलकों में बंटने से बेहतर है यूथ को भी ये चाहिए कि वो इतने छोटे छोटे हिस्सों में बट के आपस में बात नहीं करते, लड़ाइयाँ करते हैं आपस में, पॉलिटिकल विंग्स बन जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. आई थिंक वन नेशन वन एक मुस्तहकम पाकिस्तान के ऊपर सोच होनी चाहिए. और कोई भी दिन जो है वो शुरू और ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कौमी तराने को ना सुना जाए. मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम ऑडियंस से, सैफ साहब आपसे कि हम सब जो हैं एक दफ़ा कौमी तराने के एहतराम में बाअदब खड़े हो जाएं और इस सोच से खड़े हों कि ये आवाज़ जो है हमारे दिल, दिमाग और हमारे ज़मीर को ज़िंदा करेगी दोबारा. और ये तस्वीरें हमारे साथ हैं, इनकी असूल हमारे साथ हैं. अगर हम उन पर ज़िंदगी बसर करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी कौम से पीछे रह सकते हैं. प्लीज़. इस बात को अपने हमेशा सोचना है कि पाकिस्तान में रहना है, यहीं ज़िंदा रहना है, यहीं मरना है और यहीं जीना है शान से. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफ़िज़.